Oh, very good morning, students. I am Pragya Tiwari, and now here I am taking you a lecture in subject organization behavior, which is BBA 201 code, right? So, in organization behavior in our classroom, we have completed first unit, and in our last audio class, I have given you the explanation about topic group and group cohesiveness. So, first of all, we will remind the previous topic, that is group. What is a group? A group is a composition of few members or few peoples who are in a group for the purpose of influencing other, and who are influenced by the activities of the other members of the group. So I think that topic was clear to you all. And the second topic, under the group, we have discussed about the types of group. The types of group were formal groups. So the of group types of group were formal group and informal group. Informal group and formal group. Informal group, that is designed by the management. Roles and responsibilities are roles and responsibilities are there. And in informal group, that is voluntary group. This informal group is voluntarily formed, and this is the purpose of formation of informal group is promoting friendliness and satisfying the need of satisfying the social needs, right? And other points we have discussed earlier in the last class. So this is the basic difference between formal group and informal group. And next topic we discussed in last class, that was group cohesiveness. As I have told you that group cohesiveness group cohesiveness is the level or degree of attractiveness among members of the group की attractiveness among members of group. इट मीन्स जितने भी मेंबर्स ग्रुप में हैं, हाउ क्लोजली दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. देखिए, एक ग्रुप होता है फॉर्मल ग्रुप, एक होता है इनफॉर्मल ग्रुप. फॉर्मल ग्रुप दैट इज फॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो फॉर्मल ग्रुप बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल ग्रुप. एंड इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल आर डिफाइंड बाय द मैनेजमेंट कि किसके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी एंड ऑब्जेक्टिव टू. ठीक है. सो इट इज एज्यूम दैट द ग्रुप कोहेसिवनेस प्रेजेंट इन द फॉर्मल ग्रुप इज लेस देन इन कंपैरिजन विद द इनफॉर्मल ग्रुप. एंड इनफॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी हो सकते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं. ठीक है. और इसमें हमारी सोशल नीड सेटिस्फाई होती है, बेसिकली नीड ऑफ फ्रेंडलीनेस, नीड ऑफ हैविंग अ ग्रुप. ठीक है. जिससे आप अपनी पहचान बनाते हो एंड यू फील हैप्पी देयर. एंड इट इज एज्यूम दैट द closeness among the members in informal group is higher than the formal group. So but group cohesiveness is very much important. अगर हम formal group भी बना रहे हैं तो उसमें भी group cohesiveness का level या degree of cohesiveness is required, that will be high degree of cohesiveness. Because अगर हम कोई task assign करते हैं organization में, if we assign a task in the organization, that will require a good cooperation, a good team building ability, which cannot be possible without the group cohesiveness. So it is written in your notes too that group cohesiveness is one of the characteristic feature of the group, which is very important from behavioristic point of view. Cohesiveness is the degree to which the group members are attracted to each other. It means सारे members का, ग्रुप में जो भी members हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ attractiveness होना, एक दूसरे के साथ
इंटरेस्ट होना, एक दूसरे में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑल टुगेदर दे कांट अचीव, वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं कर सकते. एंड अगर ग्रुप कोहेसिवनेस है, अगर ग्रुप कोहेसिवनेस है, उनमें क्लोजनेस है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को जानते हैं, दे वांट टू वर्क विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, इट मीन्स दे आर मोटिवेटेड. इसका मतलब क्या है? दे आर मोटिवेटेड टू स्टे इन ग्रुप, वो ग्रुप में रहने को तैयार हैं एंड दे विल वर्क गुड. राइट, अंडरस्टूड. इट इज़ अंडरस्टैंड एज द एक्सटेंट ऑफ लाइकिंग ईच मेंबर हैज़ टूवर्ड्स अदर्स, यानी कि एक दूसरे को पसंद, जो ग्रुप में मेंबर्स हैं उनको एक दूसरे को पसंद करना है. मतलब उन ऐसा नहीं कि आप ग्रुप में हो और आपको कोई मेंबर आपको ना पसंद है. अगर कोई मेंबर आपको ना पसंद होता है तो आप उसके साथ अच्छे से कोऑपरेटिव वे में वर्क नहीं कर पाते, एंड इट विल अफेक्ट द बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी अफेक्ट करेगा, एज वेल एज द behavior within the group will also affect by this kind of nature. So cohesiveness refers to the extent of unity in the group and is reflected in members conformity to the norms of the group, feeling of attraction for each other and wanting to the members of the group. So it gives the conformity, it gives the feeling of attraction for each other. I hope you understand this topic. Second is, what are the benefits of cohesiveness? Benefits of cohesiveness are more productivity. जितना ज़्यादा members आपस में close होंगे, they will do good work. जितना वो लोग close होंगे, जितना वो लोग आपस में काम करना पसंद करेंगे, एक दूसरे को पसंद करेंगे, उतना वो लोग काम में interest लेंगे. And if they will took interest in work, it will give more productivity. Second is more participation. एक absenteeism एक word होता है कि जैसे absenteeism का मतलब है कि rate of एब्सेंट्स. ठीक है, तो मोर पार्टिसिपेशन, जितना ग्रुप्स अच्छे होंगे, कोहेसिवनेस होगी, तो उतना दे विल इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड इज़ मोर कन्फर्मिटी. ग्रुप में अगर सब लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करना अच्छा लगता है उनको, तो अगर एक कन्फर्मिटी स्ट्रांग रहती है. कन्फर्मिटी मतलब कोई भी टास्क हम उनको दे रहे हैं तो इट विल बी कन्फर्म, हमें पता है कि ये सब लोग बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, तो दे विल कंप्लीट द वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल objective या within the organizational time duration which is assigned to them. Next is more success. If the unity is good among the group members, अगर unity है, लोग सारे जितने organization के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, they have a good bonding with each other, then the success is definite. बिल्कुल confirm हो जाता है कि they will succeed in the work which is assigned to them. Next is more communication. अगर cohesiveness है तो confusion, ambiguity arise होने के chances नहीं होते, because there will be more communication. Next is more personal satisfaction. As people in the group, अगर ग्रुप के पीपल आपस में एक दूसरे को लाइक करते हैं, they have interest in working with each other, then it will give them more personal satisfaction. It will give them more personal satisfaction, मतलब उनकी पर्सनल नीड्स भी फुलफिल हो रही है, क्योंकि इफ़ दे लाइक द ग्रुप तो उनको अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई दूसरा ग्रुप नहीं चाहिए, और अगर उनको दूसरा ग्रुप नहीं चाहिए तो उनकी जो पर्सनल नीड्स हैं वो वहीं सेटिस्फाई हो जाती हैं. ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज, अंडर द ग्रुप कोहेसिवनेस देयर इज अ क्वाड्रेंट दैट इज कॉल्ड द relationship between performance, norms and productivity. Cohesiveness. There is a quadrant which is being made in your notes, that is in the vertical side you will write performance, norms, and horizontal side you will write productivity, cohesiveness. Right? Parameters are high and low, high and low. This quadrant is well made in your notes also. notes में भी है ये quadrant आपके.
सो व्हेन द परफॉर्मेंस नॉर्म्स, जैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर परफॉर्मेंस नॉर्म्स हाई रखता है, हाई सेट करता है, राइट, परफॉर्मेंस नॉर्म्स, इफ परफॉर्मेंस नॉर्म्स आर हाई एंड कोहेसिवनेस इज ऑल्सो हाई, देन प्रोडक्टिविटी विल बी हाई. सेकेंड, अगर परफॉर्मेंस नॉर्म्स आर लो, परफॉर्मेंस नॉर्म्स लो हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड जो फिक्स करे हैं दैट आर नॉट टू मच, एंड कोहेसिवनेस इज़ हाई, लोगों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है लेकिन उनके पास काम करने के लिए जो टास्क हैं वो कम है, स्टैंडर्ड्स कम हैं जो कि वो इजीली कर सकते हैं, देन द प्रोडक्टिविटी विल बी लो. प्रोडक्टिविटी क्यों लो हो जाएगी? बिकॉज दे विल हैव द ओवर कॉन्फिडेंस. इफ़ दे आर इन ए टीम दे विल कम्युनिकेट मोर regarding their personal things, they will communicate more regarding their happiness in comparison to the प्रोडक्शन. वो प्रोडक्शन की बात कम करेंगे, प्रोडक्शन के बारे में कम सोचेंगे या ऑर्गेनाइजेशन गोल के बारे में कम सोचेंगे, बट दे विल थिंक मोर अबाउट देयर अदर थिंग्स के बारे में ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे. दे विल लेस इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्शन, दे विल हाईली इंटरेस्टेड इन देयर गॉसिप्स, देयर चैटिंग, सो इट विल रिड्यूस, इट विल लोअर डाउन द प्रोडक्शन. इफ़ परफॉर्मेंस नॉर्म्स आर लो, परफॉर्मेंस नॉर्म्स मतलब उनके स्टैंडर्ड्स हाई लो हैं, उनके लिए जो स्टैंडर्ड्स फिक्स करे गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने जो टारगेट फिक्स करे हैं वो लो हैं, तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? लो. एंड इफ़ परफॉर्मेंस नॉर्म्स आर हाई, परफॉर्मेंस नॉर्म्स आर हाई मतलब उनके लिए स्टैंडर्ड्स हाई रखे गए हैं बट उनकी कोहेसिवनेस, द कोहेसिवनेस दे आर हैविंग इज़ लो, कम कोहेसिवनेस है, उनमें क्लोजनेस नहीं है, बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, देन द प्रोडक्शन विल बी मॉडरेट. मॉडरेट प्रोडक्शन का मतलब है ठीक ठाक प्रोडक्शन कर लेंगे, दे विल अचीव द टारगेट, राइट. एंड इफ परफॉर्मेंस नॉर्म्स आर लो, परफॉर्मेंस नॉर्म्स भी लो हैं एंड कोहेसिवनेस भी लो है, यानी कि उनमें क्लोजलीनेस, बॉन्डिंग इज लो, परफॉर्मेंस नॉर्म्स उनके स्टैंडर्ड्स भी लो हैं, देन द प्रोडक्शन विल बी मॉडरेट टू लो. मॉडरेट टू लो का मतलब है कि ठीक ठाक प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन चैटिंग ईदर, ना उन्होंने वहाँ पर रह के आपस में एक दूसरे से बातें करनी है और ना ही उन्हें ज़्यादा काम है. तो दे विल अगर वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनमें कोई अच्छा क्लोजलीनेस नहीं है, कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं है आपस में, देन दे विल डेफिनेटली इंक्लाइंड टूवर्ड्स देयर वर्क. तो वो क्या करेंगे? उसके अलावा काम क्या बचता है उनके पास कि वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं. देन द प्रोडक्शन विल बी मॉडरेट टू लो. लो प्रोडक्शन कब होगा? जब वो बहुत ज़्यादा उनमें क्लोजलीनेस होगी, डेंस क्लोजलीनेस होगी, जहाँ पर वो आपस में दे मे हैव द इंटरेक्शन विद ईच अदर रिगार्डिंग अदर टॉपिक्स अदर देन द प्रोडक्शन. ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के अलावा जहाँ पर वो और भी उनके पास टॉपिक्स हैं, तो वो क्या करेंगे? उस काम को छोड़ के अपना उन गॉसिप्स में ध्यान देंगे. लेकिन अगर प्रोडक्शन उनके पास प्रोडक्शन नॉर्म्स लो हैं एंड कोहेसिवनेस इज ऑल्सो लो, उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी नहीं है, नॉर्म्स भी लेस हैं, तो वो क्या करेंगे? ठीक ठाक प्रोडक्शन कर लेंगे या ठीक ठाक से कम प्रोडक्शन कर लेंगे, लेकिन इट इज़ नॉट डन दैट कि वो बिल्कुल ही लो प्रोडक्शन करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज individual difference that I will explain you in the next class. Okay, thank you students.